Let us see the next question. Following information is available of Messrs TS Limited. तो एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 5 करोड़. इंटरेस्ट ऑन डेट इज 1 करोड़. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इज 4 करोड़. इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 25% 1 करोड़. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 3 करोड़. Number of outstanding shares of rupees 10, 40 lakhs. EPS is given, price earning ratio, market price is given, and price earning ratio is given. TS Limited has undistributed reserves of rupees 8 crore. यानी reserves and surplus दे रखा है हमको 8 करोड़ का. The company requires rupees 3 crore for the purpose of highlight the portion expansion, which is expected to earn same rate of return on the capital employed as at present. However, if the debt to capital employed ratio is higher than 35%, the price earning ratio is expected to decline to 8 times and a rise in the cost of the additional funds at the rate of 14%. Given this data, which of the following options the company would prefer and why? That is a question. Option number 1, if the required amount is raised through debt financing. Second question, required amount is raised through equity financing and the new shares will be issued at a price of rupees 25. I request all of you to go through the question please. फिर हम लोग डिस्कस करते कि कैसे करने का. Let us have understanding this question कैसे किया जाएगा. क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा दे रखा है. I just request all of you to pay attention. देखो 40 lakhs is a number of shares और 10 रुपए का फेस वैल्यू है. So there is an equity share capital 40 lakhs into 10, that is 400 lakhs. Undistributed reserves है an amount of rupees 8 करोड़, यानी हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है an amount of 800 lakhs. डिबेंचर का इंटरेस्ट है 1 करोड़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. So 1 crore divided by 10%. That comes to an amount of 10 crore, that is 1000 lakhs. This is what we understand is the total capital employed right now. So the total amount of the investment is, so it is 400 plus 800 plus 1000. We understand that there is an amount of capital employed of 2200 lakhs. We can see that we are that is earning right now an amount of 5 crore. So 5 crore divided by 22 crore into 100. So the rate at which we are earning right now is 22.73%. Now why do we compute this? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हम लोग हमारा बिजनेस है ना एक्सपांड करने वाले हैं. कितने से? 3 करोड़ रुपए से. तो ये जो 2200 लाख है ना उसमें क्या होगा? 300 लाख ऐड होगा, यानी कितना होगा? 2500 लाख हो जाएगा. ये 2500 लाख जो हो जाएगा ना उसके ऊपर हम लोग कमाएंगे एट दिस रेट. तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज द न्यू ऑपरेटिंग इनकम दैट वी विल हैव. ओके, ना क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है द कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 3 करोड़ for the purpose of expansion which is expected to earn same rate of return on capital employed as at present. यानी क्या होगा? 22.73% is the rate at which we will earn
इवन ऑन दिस 3 करोड़, ऐसा हमको दे रखा है। तो उसके हिसाब से हमारा नया EBIT आएगा ना। क्वेश्चन में दूसरा हमको ऐसा एक कंडीशन दे रखा है। ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। लेट्स से व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि वो जो रेट है दैट इज द रेट एट विच वी आर गोइंग टू अर्न इवन ऑन दिस एडिशनल 3 करोड़। राइट ऑन आंसर। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ amount of debentures. Interest is equal to debentures into rate of interest. Debentures is equal to interest divided by rate of interest. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 1 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. So the amount of the debenture will be rupees 10 crore. That is the first working note. Working note number 2, calculation of current return on capital employed. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं बिफोर टैक्स। कैसे होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100 for getting answer in percentage term. So it is 5 crore divided by capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स into 100. 5 crore divided by equity share capital, वो कितना है फ्रेंड्स? We can see that say the number of equity shares हमको दे रखा है 40 lakhs into 10, यानी क्या होगा? 400 lakhs. फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कितना दे रखा है? 8 करोड़। और डिबेंचर्स हमने कैलकुलेट किया 10 करोड़ into 100 for getting answer in percentage term. So 5 crore divided by 400 lakhs यानी कि 4 करोड़। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 10 22। It is 22.73%. This is what we have as a return on capital employed. Now friends, we will be earning 22.73% even on this expanded funds. इतना हमने समझ लिया ना। अभी हम लोग आगे चलते हैं, एकदम अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, इफ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो is higher than 35%, प्राइस अर्निंग रेशियो विल डिक्लाइन। अच्छा, यानी हमको कुछ ऐसा दे रखा है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी अगर वो 35% से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा 8, ऐसा हमको दे रखा है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो, अरे भाई नहीं बढ़ेगा तो जो है वही का वही रहेगा 10। हम लोग है ना 2 मेथड से फाइनेंसिंग का सोच रहे हैं, एक डेट फाइनेंसिंग से और दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग से। तो हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दोनों केस में हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 35% से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस द प्राइस अर्निंग रेशियो, अदरवाइज हम लोग प्राइस अर्निंग रेशियो को रिड्यूस नहीं करेंगे। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो का कैलकुलेशन सर हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे है ना, वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट से वी हैव टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग से
विच फाइनेंसिंग ऑप्शन द कंपनी वुड प्रेफर। इसके लिए क्या किया जाएगा, दोनों ऑप्शंस के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी अगर हमने 3 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन डेट से किया तो, और अगर हमने 3 करोड़ का एक्सपेंशन इक्विटी से किया तो, दोनों केस में मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा उसका कैलकुलेशन होगा, और से जिसका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। दैट इज द रीजन से हम लोग यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होगा से वो कैलकुलेट करने का यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। चलो नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेट टू capital employed ratio, comma, if additional funds raised by debt, comma, equity. चलो, I want you to write in the chat box कि अगर additional financing debt से raise किया तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होगा। तो एडिशनल फंड्स का फाइनेंसिंग करेंगे डेट से, इक्विटी से, दोनों केस में क्या होगा वो समझ लेते हैं। existing debt, it is an amount of rupees 10 crore, so I'm writing over here 10 crore. Then retained earning, reserves and surplus, it is an amount of rupees 8 crore. Then equity share capital 4 crore. New debt, it will be 3 crore. Okay, debt financing के कॉलम में। न्यू इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग के कॉलम में डैश, टोटल 10 plus 8 18, 18 plus 4 22, 22 plus 3 25. So debt to capital employed ratio, in that case it is 10 plus 3 13, divided by 25 crore into 100, that comes to 52%. चलो इक्विटी कॉलम का आप आंसर कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो अगर एडिशनल फाइनेंसिंग इक्विटी से होगा तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगा, सॉरी एग्जिस्टिंग डेट सेम रहेगा, रिटेन अर्निंग सेम रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग सेम रहेगा, न्यू डेट 0, न्यू इक्विटी हो जाएगा 3 करोड़, तो टोटल 25 करोड़ ही होगा, बट न्यूमरेटर में क्या होगा सिर्फ 10 करोड़, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 25 करोड़ इनटू 100, यानी आंसर आता है आई थिंक दैट्स ए 40%। यस, दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू फाइंड द आंसर। ओके, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग we are required to make the calculation of the market price of the share. So let us answer the question. Calculation of market price of equity share, comma, if additional funds raised by debt, comma, equity. चलो आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि अगर हमने एडिशनल फाइनेंसिंग डेट से रेज किया तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। सिर्फ डेट का आंसर भी चैट बॉक्स में लिखिएगा। सो डेट फाइनेंसिंग के ऑप्शन में क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं।
हम लोग शुरू करेंगे EBIT से। देखो EBIT की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो, 5 करोड़ एग्जिस्टिंग प्लस 3 करोड़ के ऊपर भी हम लोग पैसा कमाएंगे। कौन से रेट से कमाएंगे? 22.73%। ऐसा करके आप आंसर लिख सकते हो। या तो फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 25 करोड़। सो 25 करोड़ इंटू 0.2273। So that is the way it is 5.6825. In either of the way you can do it. 3 into 0.2273, that is 0.6819 plus 5. So 5.6819. वो marginal difference इसलिए आ रहा है because say we are doing some approximation. But दोनों answers valid है. That is the way first of all we have the EBIT to be calculated. फिर क्या किया जाएगा? लेस एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, यू कैन सी इट इज एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़। फिर क्या किया जाएगा? लेस न्यू इंटरेस्ट, क्योंकि एडिशनल फाइनेंसिंग ये जो 3 करोड़ है ना, वो हमने डेट से लिया है। डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट से डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 35% से ज्यादा हो गया। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, रीड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। इफ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज हायर देन 35%, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 8 हो जाएगा। एंड दूसरा क्या दे रखा है? राइज इन द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल डेट टू 14%। यानी हमको ऐसा दे रखा है डेट से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 14% हो जाएगा, ऐसा दे रखा है हमको। क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 10 है, पर नए फाइनेंसिंग के ऊपर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 14%। अच्छा, एडिशनल दैट इज डेट फाइनेंसिंग कितना? 3 करोड़ का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%। सो 3 इंटू 0.14 कितना आएगा? 0.42 करोड़। So earning before interest and taxes minus interest, that will give us EBT 5.6825 minus 1 minus 0.42. So 4.2625. इनकम टैक्स का रेट है 25%। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4.2625 into 0.75, that comes to 3.196875. So 3.20 में लिख देता हूं रफली। So it is 4.2625 into 0.75, क्योंकि 25% टैक्स है। सो 3.196875 आ रहा है, तो मैंने 3.20 कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज 0.4 करोड़, क्योंकि अभी 40 लाख शेयर्स है। तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा? 3.2 डिवाइड बाय 0.4, दैट कम्स टू 8। मल्टीप्लाइंग विद क्या करेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 करेंगे? नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 करेंगे। सर 8 क्यों किया आपने? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपने को? क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से अगर हमारा से डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अगर 35% से बढ़ जाता है, ये 35%, तो उस केस में जो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट विल रिड्यूस टू 8 टाइम्स। इसलिए हमने क्या किया, से जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 8 लेके मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया। सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 64, that is 8 into 8. I request you to write an answer for the first option, that is additional financing by way of debt.
सेकेंड इक्विटी का आंसर आप कीजिए, फिर मैं करके देता हूं। इट इज 8 into 8, दैट कम्स टू 64। लेट अस सी दैट से हाउ टू डू आंसर। ईबीआईटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स दैट से whatever may be the financing pattern, always say the operating income is going to be same. Operating income कभी भी change नहीं होगा with the financing plan. Many a times I give example to the students like this. Say suppose मुझे हेवमोर का आइसक्रीम पसंद है, तो जब मैं हेवमोर का आइसक्रीम खाता हूं तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सोचता हूं। अभी मैं एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो एप्पल का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो कंपनी का सेल्स होता है, कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, वो सारा का सारा से इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम सेम रहेगा, हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है ना वो भी सेम रहेगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़। नया इंटरेस्ट 0 होगा, सो इट इज 4.6875। So 4.6875 into 0.75, that is 3.515625. So मैं 3.52 लिख रहा हूं। Okay, approximation. Now number of equity shares में हमको एक छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा। Calculation of working note for calculating number of equity shares to be issued for equity plan. उसमें क्या होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अमाउंट कितना है, अमाउंट है फ्रेंड्स 3 करोड़, और इश्यू प्राइस कितना दे रखा है, इश्यू प्राइस हमको दे रखा है 25 रुपए। Language of the question is very clear, that's the new issue will be at the rate of ₹25. Understand friends that the current market price is huge 75. In spite of that, the company wants to make sure that there are no chances कि हमारा इश्यू फेल हो, इसलिए कंपनी इतना सारा डिस्काउंट दे रही है। सो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 25 रुपीज पर शेयर, सो 0.12 करोड़ शेयर्स ऐड होंगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, 0.4 करोड़, उसमें 0.12 ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.52 करोड़ हो जाएगा। 3.52 divided by 0.52, so it is 6.7692। 77 में कर देता हूं। प्राइस अर्निंग रेशियो वापस में 8 लूंगा, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे भी देखो ये 40 है, 40 35 से ज्यादा है, इस वजह से। सो 6.77 इंटू क्या किया जाएगा, 8, दैट कम्स टू 54.16। So we understand that over here, so the market price of the equity share is 6.77 into 8। दोनों में से किसका प्राइस ज्यादा है उसका कंपैरिजन करने का, जिसका प्राइस ज्यादा है से उसको हमें सिलेक्ट करना है। प्लीज राइट डाउन आंसर। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द इश्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज 0.12 करोड़। तो फाइनल आंसर क्या होगा, द कंपनी शुड रेज एडिशनल फाइनेंसिंग बाय डिवेंचर्स। सो फाइनल आंसर, द कंपनी शुड रेज additional financing
बाय डेट, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का एक मैं आपको समरी देना चाहता हूं। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से हम लोग हमारा बिजनेस एक्सपांड करने वाले, ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से हम लोग 3 करोड़ रुपए से हमारा बिजनेस एक्सपांड करेंगे, और आपको ये बताना है कि ये 3 करोड़ का जो एडिशनल फाइनेंसिंग हमको बिजनेस में चाहिए वो हमको कैसे लाना चाहिए, इक्विटी से या डिबेंचर से। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन ऑर्डर टू टेक दैट डिसीजन, ऐसा हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। वी विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन एमपीएस इंस्टेड ऑफ ईपीएस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो का इंफॉर्मेशन दे रखा है, और अगर हम लोग ईपीएस से डिसीजन लेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज नहीं होगा। दूसरा, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज ऐसा आर्ग्यूमेंट है दैट से द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इंडिकेटिंग वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया जिसपे हमने अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स कैलकुलेट किया कि कंपनी का एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितना है, और ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाया हमने क्या, लेट्स से व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वर्किंग नोट हमने इसलिए बनाया क्योंकि एडिशनल 3 करोड़ रुपए जो है ना, उसका रेट ऑफ अर्निंग वही होगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जो रेट से कमा रहे हैं ना, वही रेट से हम लोग एडिशनल 3 करोड़ के ऊपर कमाएंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में एक्सप्रेसली ये दे रखा है, यू डोंट हैव टू मेक एनी अजम्पशन। तो ये हमने लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया। तो इसके ऊपर से हमारे पास ईबीआईटी का वैल्यू क्या होगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन में हमको ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है। हाउएवर देयर आर टू थिंग्स, एक प्राइस अर्निंग रेशियो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एडिशनल डेट फाइनेंसिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेट इक्विटी रेशियो, दैट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से अगर ये 40% से एक्सीड होता है तो प्राइस अर्निंग रेशियो विल फॉल डाउन। इसलिए हमने क्या किया, वी हैव मेड द कैलकुलेशन दैट से व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा करके हमने कैलकुलेट किया व्हाट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फर्स्ट सिचुएशन में 52%, सेकेंड सिचुएशन में 40%। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, 35% से एक्सीड हो गया तो प्राइस अर्निंग रेशियो गिर जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि नए डेट फाइनेंसिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में 14% हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसा मान लेंगे दैट से एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। उसके बाद तो आसान है बहुत क्वेश्चन, ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी फाइनेंसिंग में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज किया जाएगा। अगर हमको प्राइस पर शेयर एट विच द सिक्योरिटीज इशूड उसके बारे में क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दे रखा होता तो हमेशा ऐसा मानेंगे इट विल बी इशूड एट करंट मार्केट प्राइस दैट इज 75, पर यहां पे क्लैरिफिकेशन है, इट इज 25। बेसिकली हम लोग ऐसा समझते हैं कि सिक्योरिटीज इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि कंपनी डज नॉट वांट टू टेक एनी चांस कि इशू अनसक्सेसफुल हो। ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस, एंड द कंपनी शुड रेज एडिशनल फाइनेंसिंग थ्रू डेट, ऐसा हम लोग डिसीजन लेंगे।